Yes, dear. Afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon, Shivam. Good afternoon. Yes, you. How are you? All good? Sir, all good, all well. So nice. So we'll continue today with the Tanker numericals. सर एक क्वेश्चन बताओगे क्या आप जो आपने क्वेश्चन भेजे थे उसमें? बोलो। सर ये फोर्थ क्वेश्चन था, कैलकुलेट द हाइट बाय द हार्मोनिक कांस्टेंट ऑफ अपोलो, ये नॉट फोर्थ नहीं, ये वाला गुड आइलैंड वाला। कौन सा? सर गुड आइलैंड, हाँ फोर्थ क्वेश्चन था, फाइंड द हाइट ऑफ टाइड एट गुड आइलैंड ऑन 12 जनवरी 1992 एट 1600 आवर्स। ये इसका क्वेश्चन कर तो लिया, पर इसका आंसर मतलब हमने एक दो जनों का बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है, 3.35 आ रहा है और इसमें आंसर लिखा है 2.177। कोई बात नहीं। अच्छे आई थिंक इस वीकेंड में एक लास्ट वाला लेक्चर मैंने मैथ के लिए रखा है, उस वक्त आई विल शो यू। ओके, मैं भी Okay. कैलकुलेट कर लूँगा, दोबारा से चेक कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। आज बच्चे टाइम कम है, सो 1 आवर क्लास है, तो आई डोंट वांट टू इसको मिस करने के। सो थर्ड लेक्चर जो है हमारा इस वीक का, वो मैथ के लिए ही है, उसमें कर लेंगे इसको रिवाइज, चेक कर लेंगे। ओके ओके सर। या एनीवे आई विल गो थ्रू दिस। कितना आपका आंसर कितना बताया आपने? 6 पॉइंट? नो सर, मेरा आंसर 3.35। ओके 3.35। आई विल गो थ्रू, आई विल चेक, फ्राइडे को कर लेंगे। ओके सर। चलो, आज का हमारा था करेक्शन फॉर एलर्जीज, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट trim correction, list correction to establish if wedge is forming and to calculate the volume of wedge. So these are the basically corrections which you are new. तक तो जो हमने किया था that was for up to second mate level you have done. So first we have done the trim correction. Now if you see this trim correction, I hope all of you can see the slide. I think this is better than the board. Yes. Chalo. So this is your tank and she is in a trimmed condition. This is aft, this is forward. And ये जो green वाला है, this is the observed allege. Now this is the allege port, and if I take the allege, my tape will go and touch the oil surface at right angles, gravity. And UT is the correct allege. This blue one is the basically the surface of oil when she is upright. This is the correct allege. So UT is the correct allege, UO is the observed allege, and UP becomes the allege corrected for tape. Why my tape is getting deflected? So उसको मैं अगर correct करता हूँ तो I will get the UP, which is the known as the allege corrected for tape correction, and UT is the corrected allege. So यहाँ पे UT is equal to UP plus PT. That is what we have done, UP plus PT. So PT is the trim correction. What we call is the trim correction. Theta, angle of trim, trim upon LBP, एंड ये आपके सामने सब है। एंड हमने इसको सॉल्व भी किया था, दैट टू फाइंड आउट द टेप करेक्शन वी टू ट्राइंगल UOP, UO upon UP is cos थीटा। सो हमारे पास करेक्शन आ गई थी, द अलेज करेक्टेड फॉर टेप करेक्शन इज UP इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अलेज डिवाइड बाय cos थीटा। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर था। एंड देन वी corrected the, or we found out, or we calculated the trim correction, that is finding PT in that small triangle PTE. So PT upon TE is equal to tan theta, or PT is equal to TE tan theta. So where we know TE is basically TE, अगर आप फिगर में देखिए, this TE is nothing, this is the center line of the tank and this is the length A. The allege port is forward of your aft bulkhead A. अब ये जो आपकी लेंथ है, दिस इज L/2, L/2 माइनस A किया तो हमारे पास ये TE की वैल्यू आ गई थी। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द ट्रिम करेक्शन। PT इज इक्वल टू L/2 माइनस A इंटू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू ट्रिम अपॉन LBP। आप कुछ भी किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो द अलेज करेक्टेड फॉर टेप एंड ट्रिम बिकम्स ऑब्जर्व्ड अलेज डिवाइड बाय cos थीटा plus L/2 minus A into trim upon LBP और tan theta. अब if the ship is down by head, तब क्या होगा?
Can anybody make a sketch if that ship is, ये तो था कि ship is down by stern, so you got a stern trim. If she is down by head, माइनस हो जाएगा. yeah, very right. So उसका भी sketch मैं आपको दिखा देता हूँ. If she is trimmed by head, so your tank will go like this. Oil surface, oil जो है आगे चला जाएगा, isn't it? This rate is the oil surface. Oil surface will definitely go to the forward bulkhead. पीछे oil का level कम हो जाएगा. And if I take the ullage from ullage port U, this ullage or this tape will get deflected towards the trim. Trim tank forward जाएगी. ये आपका UO आ गया right angle पे. And यहाँ पे भी corrected ullage क्या है? UT. And PT मैंने निकाल लिया. So in this case, UT will be equal to UP minus PT, isn't it? UT is equal to UP minus PT. वहाँ पे it was UP plus PT, यहाँ पे माइनस हो रहा है. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? If she is trimmed either way, either by head or by stern, तब हम इसको यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे. ऑब्जर्व्ड ullage डिवाइड बाय cos थीटा प्लस माइनस L by 2 minus A into trim upon LBP और tan थीटा. तो ये तो थी कि हाउ दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड. अब आगे नेक्स्ट, ये तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था. अब हम करते हैं इफ शी इज गॉट अ लिस्ट. इफ शी इज गॉट अ लिस्ट तब क्या होगा? नाउ सपोज आई एम शोइंग द टैंक इन अ डिफरेंट वे. नाउ दिस इज पोर्ट साइड, दिस इज स्टारबोर्ड साइड, and this is the ullage port which is off centered from the center line of the tank, not from the center line of the ship. This is the tank, ship is listed to port, and this is the center line of the tank, center line of the tank. And my ullage port is, it can be either off center to starboard side or it can be off center to port side, isn't it? Either way it can be. So let us consider the ullage port is off center to starboard by how many meters? B meters. Now if I take the ullage, this is my ullage. If I am taking the ullage tape, so my ullage tape will definitely get deflected towards the list side. So UO will be the ullage I will get, and it will be 90 degree to the oil surface. अब correct ullage इस केस में क्या है? Again correct surface तो यही है. If there is no, if she is upright, तो तेल का level जो है that will be that blue color parallel to the ship's bottom. So correct ullage is UT. Now I took the ullage but I got UO. Now मेरे को इसको UT पे लेके आना है. So UT पे हम कैसे लेके आएंगे? UT is the correct ullage. So in this case we consider this triangle again same UOP. UO is known. I can calculate UP. And same XTP triangle ले लीजिए small वाली. Same TP upon XT is equal to tan of phi कह देते हैं. Instead of theta we give it another name phi or tan of list. तो यहाँ पे ये लिस्ट एंगल है. लिस्ट का तो हमें स्ट्रेट वे एंगल दिया था. शी इज 1 डिग्री लिस्टेड, हाफ अ डिग्री लिस्टेड टू स्टारबोर्ड और पोर्ट. तो यहाँ पे ये tan ऑफ, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फाई से. सो बेसिकली TP विल बी इक्वल टू XT. व्हाट इज XT? हाफ ऑफ ब्रेथ माइनस B. दोबारा देखिए XT क्या है? इट इज जस्ट इक्वल टू B. Equal to B. Yes, it is how much my ullage port is off center. Ullage port is 2 meter to starboard or 2 meter to port side. XT is equal to basically B. So that means it is B into TP is equal to B into tan of list. So this is basically your list correction TP. तो ये UO UP जो है almost बराबर हो जाएगा. For small angles you will find this value is same. So you will find the list correction is actually TP. Anyway, calculation के लिए we have taken let phi be the angle of list. Same triangle UOP, UO upon UP is equal to cos of phi, and UP will be equal to UO upon cos of phi, which you will find if the ullage is 1 meter or 2 meter, 2 divided by cos of 1 degree, you will find it is remaining as same 2 meters. And small triangle XPT, we have taken TP upon XT is equal to tan of list
what we call phi. TP is equal to xt into tan. xt I know is the distance b. So यहाँ पे भी corrected allele जो आपकी आ जाएगी UP minus TP. So in case of फिर एक list, बार वो डायग्राम खोलना जो आपने खोला हुआ था अभी। इस केस में there are two possibilities. एक तो है allege port मेरी सेम साइड ऑफ द लिस्ट हो सकती है, एक मेरी allege port जो है opposite to the list. जैसे in this case it is listed to port, allege port is off center to starboard. तो मतलब जैसे ट्रिम के अंदर फॉरवर्ड होता था तो माइनस करते थे, इसमें पोर्ट में माइनस कर देंगे, मतलब जिस तरफ लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वैसे। Very nice. So it is simple कि if the list and the allege port are on the same side, अब तो प्लस हो जाएगी लिस्ट करेक्शन. अब इन दिस केस क्या है, लिस्ट इज पोर्ट साइड, allege port is off center starboard, that means opposite. If the list and the allege port are opposite sides, अब हमने देखा माइनस हो रही है, isn't it? UT के लिए UP माइनस TP हो रही है. अगर हम इस तरफ जाते allege port मेरा इधर होता तो UT ने हो जाना था UP प्लस PT हो जाना. So it is very simple. अब अगर आप इसका मेरा फॉर्म, yes, I have written here, if the list and allege port on opposite side of center line, correction to be subtracted, and if list and allege port on the same side, correction to be added. सर वो ऐसे पीछे वाली साइड दिखाएं. यस सर, ओके. क्या तो अब मेरे पास अगर हम इसको टोटल अप करें तो इफ द शिप हैज गॉट अ ट्रिम एंड शी इज गॉट अ लिस्ट, तब हमारी करेक्टेड अलेज क्या आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड अलेज डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस माइनस L/2 माइनस A इंटू ट्रिम अपॉन LBP और tan ऑफ थीटा विच इज द एंगल ऑफ ट्रिम प्लस माइनस B इंटू tan ऑफ फाई. अब यहाँ पे ये जो है, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको ले लिया ऑब्जर्व्ड अलेज अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस B इंटू tan ऑफ फाई. तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है कि अगर मेरे को उसने ऑब्जर्व्ड अलेज दी है, ट्रिम दी है, लिस्ट दी है, I can straightway write corrected allege is equal to, make a sketch and just write the formula and calculate the values individually. Again, observed allege is suppose 1.5, so 1.5 divided by cos of theta plus minus is tape correction. This is known as tape correction. This is known as trim correction, L/2 minus A, and this is known as list correction. ये तीनों करेक्शन हम अलग अलग निकालेंगे, उनको प्लस माइनस कर देंगे, whatever is applicable. फिर इसमें जो प्लस माइनस लिखा है, जैसे आगे जो प्लस माइनस है तो फॉरवर्ड मतलब जहाज फॉरवर्ड से ट्रिम होगा तो माइनस हो जाएगा, और वो और लिस्ट वाले में इसमें मतलब दोनों करेक्शंस इसी बेसिस पे लग रही है ना. नो, लिस्ट के लिए ये देखो, नहीं वो मैं ये तो समझ गया, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ जो इसमें ये प्लस माइनस है ये उसी प्रिंसिपल पे है ना, लिस्ट अगर अलग वो उस पे है वैसे ही है ना. करेक्ट. ठीक है सर, करेक्ट. तो ये ध्यान रखना, ये लिस्ट एंगल है, सेकंड लाइन B इंटू tan ऑफ लिस्ट, tan ऑफ 1 डिग्री, tan ऑफ 2 डिग्री. एनीवे न्यूमेरिकल करेंगे फिर आप फास्ट हो जाओगे, फिर आप ज़्यादा समझ जाओगे. तो एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें, चलो पहले सिर्फ ट्रिम वाला कर लेते हैं, ठीक है. ये लीजिए, टैंक डायमेंशंस 25, 20, 18, लोडिंग एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. On completion of loading, vessel trimmed 1 meter by stern, allege 1.8 meter using sonic tape. तो अभी आपने सिर्फ इतना ही करना है. I will explain you later on कि what are the other methods of taking the sounding, I mean allege, sorry, sonic tape, वेसो गेज क्या होती है, बट अभी हम इसको पहले इतना ही समझते हैं. allege port located 3 meter forward of the aft bulkhead, calculate the quantity of oil. क्वेश्चन लिखिए, मेक अ स्केच
and then do it. सर हाँ जी बच्चे बोलो। सर इसमें ये जो अलिश पोर्ट का जो लाइन लिखी हुई है, अलिश पोर्ट इज लोकेटेड 3 मीटर फॉरवर्ड ऑफ द आफ्ट बल्कहेड, तो ये तो सेंट्रल लाइन पे भी कहीं हो सकता है ना। वो सेंट्रल लाइन से इधर तो दे ही नहीं रखा पोर्ट स्टारबोर्ड कहीं पे। या इट इज बच्चे ओनली इट इज अ ट्रिम कंडीशन। सी ट्रिम कंडीशन में आपका अलेज पोर्ट कहीं पे भी हो, इफ यू लुक एट द स्केच जो हमने किया है, कहीं पे भी होने दीजिए उसे। नाउ दिस इज व्हाट आई नीड इज द हाउ मच द डिस्टेंस फ्रॉम आफ्ट, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अब वो सर कहीं 3 पे मीटर दिया हुआ है, ये तो 3 मीटर दिया हुआ है ना। यस, हमें सेंट्रल लाइन से ऑफ चाहिए जब उसमें लिस्ट होगी। नाउ दिस यू आर लुकिंग एट द टैंक फ्रॉम द साइड। अब जैसे जेटी पे खड़े हो, यू आर लुकिंग इनटू द टैंक, आपको टैंक ऐसा दिखेगा। वाले स्पॉट कहीं पे भी हो, पोर्ट स्टारबोर्ड सेंटर जहाँ पे भी हो टैंक के, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कितने मीटर आगे है वो फर्क पड़ेगा। दिस कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व।
Shivang, is that clear or should I show you on the board? नहीं सर, वो समझ में आ गया मेरे को, ठीक है। Okay, बच्चों। सर इसमें थीटा क्या लेंगे, मतलब बेसिकली Trim upon LBP, tan inverse 10 trim upon LBP. उसने 1 मीटर ट्रिम दिया, LBP 180। 180 का दिया तो एलबी। कैसे बताना सर एक बार, तो क्या बोले सर? ये LBP दी ना 180 meters हाँ ठीक है सर। and Sir. trim is 1 meters. So हाँ we जी। know tan theta is equal to trim upon LBP. So theta is equal to tan inverse 1 upon 180. So 1 upon 180 की जो वैल्यू आएगी उसका tan inverse कर दो। 1 divided by 180 will give you 0.005 something. So इसका inverse tan 0.318 degrees. 0.318 degrees, isn't it? Theta की वैल्यू है only 0.3. 0.32 ले लो या 3.318, उसका फिर कॉस्ट निकाल लीजिए। सर एक बार ये थीटा का वापस बताना कि ट्रिम बाय एलबीपी कैसे हुआ। क्या थीटा की वैल्यू हम लेते हैं ट्रिम अपॉन एलबीपी। ट्रिम अपॉन एलबीपी tan थीटा इज इक्वल टू ट्रिम अपॉन एलबीपी। अगर आप इसको स्टेबिलिटी में पढ़ा होगा आपने, अगर वो फिगर बनाते हैं तो जो ये ट्रिम है थीटा, इसका मैं इन्वर्स करता हूँ, tan इन्वर्स ट्रिम अपॉन एलबीपी जो है आपको थीटा की वैल्यू 0.3180। ट्रिम एंगल इज ओनली सो मच। ये देखो, चाहे 1 मीटर ट्रिम थी, ट्रिम एंगल कम्स वेरी स्मॉल। इवन 2 मीटर भी ले लीजिए तब भी ट्रिम एंगल विल बी वेरी स्मॉल। जो सर 15 पे डेंसिटी कितना था? 0.7850। ओके सर। सर एक बार ये बताएंगे कि आप प्लीज ये जो थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है tan थीटा इक्वल टू ट्रिम बाय एलबीपी कैसे हुआ, बाकी तो सारा हो गया। अच्छा, ये कोई बात नहीं, 2 मिनट इनको करने दे, मैं समझा दूंगा, बाद में समझा, इसको खत्म करने दे फिर समझा दूंगा, ठीक है। आई टेक यू अबाउट 5 मिनट्स, खत्म होने दीजिए फिर कर लेते हैं।
सर आ गया आंसर। चलो गुड, ठीक है। सो आपने एक स्केच बनाना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव मेड। स्केच इज इजी नाउ। यूओ आपको दिया इन दिस केस 1.8 मीटर्स। यूओ इज द ऑब्जर्व्ड allele 1.8 and I want to calculate the corrected allele which is ut, and ut is equal to up plus pt। तो मैंने फर्स्ट केस में टेप करेक्शन यूपी निकाल लिया। यू अपॉन यूपी इज इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाय cos of 3.13 degrees which is same 1.800। एंड सिमिलरली ट्रिम करेक्शन ट्राइंगल PT स्मॉल वाली ट्राइंगल ली PT अपॉन TE ये हमें पता है, एंड वी केम टू नो द trim correction is 0.053। so hence allele is corrected for tape and trim ut is equal to up plus pt। वही हमने स्केच में दिखाया है। corrected allele is equal to ut which is equal to up plus pt। हमारी corrected allele आ गई 1.853। so once you have the corrected allele with you, now it is easy to calculate the volume and the mass। so GOV 25 into 20 length into breadth into height of oil। Same way 18 meter is the height of tank, 1 meter allege port is above the deck minus the corrected allege 1.853 will give me the height of oil। इसको मल्टीप्लाई किया तो this is the GOV 8573.5। VCF from table 54 for density 7805 and temperature कितना 35, उसके अकॉर्डिंगली मैंने VCF निकाल लिया क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड WCF 0.7850 माइनस 0011। दोनों वैल्यू आ गई। VCF भी है मेरे पास, WCF भी है। क्वांटिटी ऑफ ऑयल स्ट्रेट वे ऐसे भी कर सकते हो 8573 इंटू VCF इंटू WCF और GSP इंटू WCF गिव मी द metric tons। तो इसलिए मैंने स्लाइड करना सर। सर ये पीछे वाली slide। इससे पीछे वाली, इससे पीछे वाली बच्चे सर लेंथ की जगह 25 मीटर कैसे आया सर? L/2 25 कैसे आया? L/2 नहीं है बच्चे, यहाँ पे L है, लेंथ है पूरी। ये देखिए हाँ ये सर इसके पीछे वाली। नहीं थी सर लेंथ इसकी। यहाँ पे शिप की टैंक की लेंथ है 25 एंड जब हमने L/2 करना है, अगर हमने L/2 किया तो 25/2 कितना हो गया 12.5 माइनस 3 25 का 2 करना है। लेंथ ऑफ द टैंक LBP का 2 नहीं करना, लेंथ का करना, लेंथ ऑफ द टैंक। ओके। सर एक बार आगे करना स्लाइड को। चलो आई होप क्लियर। एनीबडी एनी डाउट सो फार? चलें बच्चे नेक्स्ट स्टेप पे चलें।
Yes, sir. चलो. Chalo. So next question we will do vessel listed only. Tank dimensions given to you, density is given to you, and on completion loading vessel listed 1 degree to starboard. Observed hull is 1.8 and observed temperature 32. Even keel. यहाँ पे alleged port is located 3 meter to starboard of the center line and 1 meter above the deck. Alleged port is 3 meter to the starboard of the center line of the tank. So please sometime do not get confused the center line of the ship. It is center line of the tank.
ये लीजिए, इसका स्केच विल बी लाइक दिस। सर इसका आंसर क्या था? 11515.4। सर 0.8 आ रहा है। कोई बात नहीं, तो चलेगा उतना। दैट इज तो मेरा तो इसमें 11514.8 आ रहा है। कोई बात नहीं, वो दैट्स ओके। आपने वीसीएफ के लिए, वीसीएफ वगैरह में फर्क हो सकता है, या कई बार सर एंगल में। VCF है 0.9852। 9852 लिया है सर, 0.9852। हाँ पर 9852 ठीक है। सर मेरा 0.1 आ रहा है, 11515.1। ओके ओके। लिस्ट करेक्शन कितने है? 0.052। 3 सर। 0.0523। तो आप ज़्यादा चले गए ना, फिर फर्क पड़ जाता है। 1 to 10 डजन मेक अ डिफरेंस। तो आपका फर्क पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा डिग्रीज पे जाओगे, ज़्यादा डिजिट्स पे जाओगे तो फर्क पड़ेगा। तो सर हमारा 1.85 था और आपको 1 इतना से तो अंतर है 0.001 का। सर इसमें ये अलग अलग निकालना जरूरी है क्या, या एक साथ डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला बताया था आपने? एक साथ भी निकाल सकते हो, ये तो जस्ट आपको शो करने के लिए है। फाइनली अगर आप क्या कर सकते हो, आपको जस्ट मेक अ स्केच एंड डाउन बिलो यू कैन राइट डेरिवेशन और फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप स्ट्रेट वे लिखिए कि स्केच बना दिया आपने। अभी आई विल कम टू दिस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इंडिविजुअल किया है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी विल डू वेयर द लिस्ट एंड ट्रिम बोथ आर देयर। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ स्केच बनाता हूँ, एंड इस स्केच को मैंने एग्जामिनर नोज व्हाट इज यूओ, व्हाट इज यूपी, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज जो भी उसको दिख रहा है, और नीचे मैं यहाँ पे स्ट्रेट वे आई कैन राइट वी हैव रिटन हियर करेक्टेड एनालिसिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एनालिसिस दिस। अब मैंने तीन चीज़ें निकालनी है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ टेप करेक्शन इज इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, ट्रिम करेक्शन इज इक्वल टू L by 2 माइनस A इंटू दिस, इसकी वैल्यू भर के, एंड लिस्ट करेक्शन सो एंड सो। तीनों की मैंने वैल्यू लिखी 1 2 3, तीनों की वैल्यू निकाली। करेक्टेड एनालिसिस में आपने इसकी वैल्यू भर देनी है, दैट्स ऑल। सर सर जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, जो cos थीटा लेते हैं, दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो जो cos थीटा की वैल्यू लेते हैं, cos थीटा जो लेते हैं, जैसे अभी लिस्ट का क्वेश्चन किया तो जो फाई वाला एंगल था वही हमने थीटा मान लिया, और यस ट्रिम वाले में हम लोगों ने जो ट्रिम था, ट्रिम वाला एंगल था, वो अपन ने ट्रिम बाय एलबीपी से वो थीटा निकाला। करेक्ट। अब जब दोनों होंगे तो कौन सा थीटा लेंगे इसमें? बच्चे दोनों अलग अलग वैल्यू होंगी, देखिए दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे tan ऑफ लिस्ट एंगल होगा, ठीक है। ये जो इसमें cos थीटा जो है ना, cos cos थीटा थीटा निकालना पड़ेगा और tan थीटा वाला दिया होगा। करेक्ट, मैंने यहाँ पे तभी इसको डिफरेंट नॉमिनेशन दी है कि यहाँ पे थीटा कह दिया, यहाँ पे फाई कह दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो cos थीटा, आप स्केच में आप दिखा रहे हो कि cos थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्रिम। ओके, यहाँ पे आपने सीधा लिख दिया tan ऑफ लिस्ट। मैं यहाँ पे फाई फाई को छोड़ के tan ऑफ लिस्ट लिख देता हूँ, दैट मीन्स लिस्ट इज 1 डिग्री, tan ऑफ 1 डिग्री। यहाँ मैंने कैलकुलेट किया थीटा, ट्रिम अपॉन एल। सर जैसे भी अपन ने दो क्वेश्चन पहले किए थे ना, हाँ जी। जिस क्वेश्चन में लिस्ट दिया हुआ था, लिस्ट था, ट्रिम नहीं था, उसमें हमने जो cos थीटा लिया था उसको हमने डायरेक्टली लिस्ट एंगल के बराबर लिया था। करेक्ट
करेक्ट, वहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा इज द एंगल ऑफ लिस्ट, एंड फिर आप थीटा भी लिख सकते हो उसको। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर सिर्फ लिस्ट दी है देन यू कैन राइट b इंटू टेन थीटा, वेरेज ब्रैकेट में लिख सकते हो थीटा इज द एंगल ऑफ लिस्ट। ओके, टर्मिनोलॉजी में नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक। यहाँ पे आप लिस्ट एंगल की वैल्यू ले रहे हो tan ऑफ 1 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इट वाज गिवन वेसल लिस्टेड 1 डिग्री टू स्टारबोर्ड, और मैंने जब ये किया यहाँ पे तो मैंने tan ऑफ 1 डिग्री कर दिया सीधा। isn't it cost of list, cos of 1 डिग्री। तो सर इस क्वेश्चन में वही तो कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लिस्ट की वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ऊपर एंगल पे अलेज के मेन सेंटर पे, और उस टाइम पे जब अगर लिस्ट और ट्रिम होगा तो दोनों का इफेक्ट होगा ना उस पे, तो थीटा ही बदल जाना चाहिए। नहीं, फिर हम बच्चे क्या करते हैं, देखिए जहाँ पे लिस्ट एंड ट्रिम होगी ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं उसी पे, तो वी विल करेक्ट फॉर द ट्रिम फर्स्ट। पहले हम ट्रिम के लिए करेक्शन लगाएंगे, फिर हम लिस्ट के लिए करेक्शन लगाएंगे। तो बेसिकली आपका फॉर्मूला यही बन जाता है, ये जो हमने रिकैप में किया है। तो आपका फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस ओनली। अब इसमें दोनों आ गए, लिस्ट भी आ गई, ट्रिम भी आ गई। सर वो एक बार दिखाएंगे वो जो हमने लिस्ट के लिए किया था, वो फॉर्मूला ड्राइव, जो लिस्ट एक साइड था और उसका अलेज पाइप दूसरी साइड था, वो वाला। ये वैसे लिस्टेड ओनली, ओके, ये वाला, ये पहले वाला, सर इससे पहले वाला। ये हाँ ये सर, वो आगे आगे। ये वाला क्या है, ये वाला। हाँ ये वाला, ये सर, ये बता। ओके सर, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में भी मैंने, आई थिंक इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी बनाया, स्केच बनाया वेसल लिस्टेड। अब इसमें वो क्या कह रहा है, वेसल लिस्टेड टू स्टारबोर्ड एंड अलेज बोट इज ऑल्सो टूवर्ड्स ऑफ सेंटर टू स्टारबोर्ड। ये आपका सेंटर लाइन ऑफ द टैंक, शी इज 3 मीटर, द अलेज बोट इज 3 मीटर टू स्टारबोर्ड साइड। सो दोनों, लिस्ट भी स्टारबोर्ड में है और अलेज बोट भी स्टारबोर्ड में है। तो आपकी जो करेक्शन है अगर आप देखिए तो प्लस हो जाएगी। वन 1.8 प्लस वो, ये सर ये 1.8। डायग्राम अगर ट्रिम के केस में होता है तो नेगेटिव होता है, राइट? बिकॉज ये हेड मूवमेंट पे हो जाती है। हाँ जी, अगर ट्रिम बाय हेड है तो ये यस, नेगेटिव होता है, और करेक्ट अभी ये लिस्ट के केस में ये पॉजिटिव हो गया करेक्ट। है ना? मतलब स्टारबोर्ड लिस्ट है तो उसका इफेक्ट फॉरवर्ड ट्रिम की तरह है, और अगर हाफ ट्रिम है तो उसका इफेक्ट पोर्ट लिस्ट की तरह है। ऐसे मत याद कीजिए। आई विल सजेस्ट यू दैट यू ट्राई टू सी दैट इफ देयर इज अ लिस्ट, अगर ट्रिम में जाते हैं तो इफ शी इज ट्रिम बाय स्टर्न तो आप ऐसा देन इट इज रखिए, पॉजिटिव। या इफ शी इज ट्रिम बाय स्टर्न, तब ये जो आपका करेक्शन आती है, इट कम्स ऑब्जर्व्ड अलेज प्लस L by 2 minus A, हाँ जी, and प्लस if she is trimmed by a head तो नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। और स्टारबोर्ड में अगर लिस्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पोर्ट में लिस्ट होगा तो नो 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 नो, हाँ जी सर, लिस्ट का नहीं क्लियर हुआ सर, आप लिस्ट का कर दीजिए। हाँ जी, लिस्ट के लिए ये याद रखिए, इफ द लिस्ट एंड अलेज पोर्ट आर हाँ, ऑपोजिट साइड, सेम साइड, ओके ओके, ऑपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट, और सेम साइड में तो एडेड, ठीक है। करेक्ट। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अलेज पोर्ट इज ऑफ सेंटर टू स्टारबोर्ड। अब ये टैंक हमारा, ये पोर्ट साइड है टैंक की, ये स्टारबोर्ड साइड है। अच्छा हाँ, तो फिर ये उधर मिरर इमेज वैसे दूसरी साइड बन जाता है। अच्छा, फिर वो पोर्ट वाली साइड बन जाता है। करेक्ट। अब आप क्या कर रहे हो, टैंक को राइट, यू आर सीइंग फ्रॉम राइट अस्टर्न। अगर राइट अस्टर्न से अगर आपने टैंक का पीछे का बल्कहेड निकाल दिया तो आपको टैंक कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड। हाँ जी सर, कर रहे हैं सर वाटर लेवल और इसका ऑयल लेवल को पीछे से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। आई फाउंड, मेरे को लगा यस। ये देखिए अभी ट्रिम के केस में हम कैसे देख रहे हैं शिप को, एज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द जेटी। हाँ सर, ट्रिम तो सर जेटी से साइड से थोड़ा थोड़ा सा होके देख रहा हूँ। जस्ट इमेजिन टैंकर जेटी पे लगा, यू आर स्टैंडिंग ऑन द जेटी। आप हाँ एक टैंक ले लीजिए, 4 स्टारबोर्ड ले लीजिए आपका। हाँ सर, ये तो पता लग रहा है सर, ट्रिम तो दिख जाता है सर, ट्रिम तो पता यस, लग ये जो मेरा ये टैंक है, ये ऐसे दिख रहा है। एंड इन केस ऑफ लिस्ट, जस्ट इमेजिन यू आर वॉचिंग द शिप फ्रॉम द राइट फ्रॉम एस्टर्न, तब ये पोर्ट स्टारबोर्ड मेरे को दिखता है।
एंड ये मेरे टैंक की सेंटर लाइन है, शिप की सेंटर लाइन नहीं है, ये टैंक की सेंटर लाइन है। अगेन चाहे आप 4 सेंटर टैंक ले लीजिए, यू आर वाचिंग 4 सेंटर, तो मेरे को टैंक ऐसा दिखेगा। जब लिस्ट होगी तो ये पूरा का पूरा तेल जो है इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे लेवल हाई हो जाएगा पोर्ट लिस्ट में, इजंट इट? एंड स्टारबोर्ड लिस्ट होगी तो ऑयल इस तरफ चला जाएगा। बट करेक्ट अलेज कौन सी है? ये ब्लू वाली, ओके सर, ठीक है सर। पैरेलल टू द बॉटम ऑफ द टैंक, ये याद रखिए, करेक्ट अलेज हमेशा पैरेलल टू द बॉटम ऑफ द टैंक, ये पैरेलल होगा, दिस इज द करेक्ट अलेज। बट मेरे को ऑब्जर्व अब ये दिखेगी, अब मैं यहाँ से टेप डालता हूँ तो मेरी टेप यहाँ पे जाके टच करेगी, दैट्स ऑल। एंड जब हमने कंबाइंड लेना है, अब हम कंबाइंड वाले पे जाते हैं कि वेसल हैज गॉट अ लिस्ट एंड ट्रिम बोथ। ये लीजिए आपके सामने है क्वेश्चन। सर हाँ जी, सर मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो जैसे अपन जब लिस्ट सिंगल करते हैं, जो थीटा लेते हैं वो अपन लिस्ट वाला लेते हैं जितना Correct. लिस्ट है। करेक्ट जब ट्रिम करते हैं तो थीटा लेते हैं ट्रिम Trim. बाय एलबीपी। करेक्ट। तो ट्रिम का भी अलग थीटा हो रहा है और लिस्ट का भी अलग थीटा हो रहा है। मैं समझ गया, आपके मन में चल रहा है कि अब जहाज कि जब दोनों चीजें हैं तो जो कॉस थीटा अपन लेंगे बेसिकली वैल्यू, तो ये दोनों की मतलब सेपरेट, तो जैसे जो टेप करेक्शन ले रहे हैं बेसिकली उसकी जो थीटा लेंगे वो अलग होना चाहिए ना। इन दोनों का तो समझ में आ गया, फाई ये इधर हो गया ट्रिम है, ये इसका अलग हो गया करेक्शन, पर वो वाला थीटा। सुनिए मेरी बात, जस्ट विजुअलाइज दैट योर शिप हैज गॉट अ ट्रिम एंड लिस्ट, ठीक है? तो इसको इमेजिन कीजिए, फर्स्ट वी विल डू द ट्रिम करेक्शन। जस्ट इमेजिन योर शिप हैज गॉट अ ट्रिम, तो जब मेरी टेप थी मैंने ऑब्जर्व्ड अलेज को टेप करेक्शन लगा दी, तो मैंने उसकी करेक्ट कर दी टेप भी। अगर टेप जो है सीधी जाती, इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्ट होने की बजाय मैंने जब उसको करेक्शन लगाई तो मैं कहाँ पे आ गया? अब मेरी टेप में ये चीज़ मैंने निकाल ली। सर क्वेश्चन लिख रहे थे सर। ओके या शिवांग 1 मिनट क्वेश्चन लिखने दीजिए। अरे कहाँ चले गए? यस, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो अब आप इसको पहले ट्रिम करेक्शन लगाइए, तब आपने जब टेप करेक्शन लगाई है, तो आपने जो टेप आपकी ट्रिम में डिफ्लेक्ट हुई थी, मैंने वो करेक्शन लगा के यूपी पे ले आया मैं उसको, इजंट इट? अब मैंने अलग से उसकी ट्रिम करेक्शन तो सेपरेट निकाल ली। नाउ आई विजुअलाइज द शिप इज लिस्टेड। अब जब लिस्ट होगी तब आपने क्या किया, जो करेक्टेड अलेज है आपकी टेप से, जो आपने करेक्ट की अलेज, अलेज करेक्टेड फॉर टेप, वो मेरी अलेज है, उसको आप अब ट्रिम में लिस्ट में ले जाइए। सो फर्स्ट करेक्ट फॉर ट्रिम, देन करेक्ट फॉर द लिस्ट। मतलब सर पहले जो ट्रिम से जो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है वो करेक्शन लगा के एक्चुअल निकाल ली, फिर उसको इनिशियल लेके उसको लिस्ट के साथ निकालना है। दैट्स करेक्ट? ओके सर। यस, दो बार होना है सर, दो बार तो वर्किंग बेसिकली होती है। जब ट्रिम लग रहा है तो ट्रिम की करेक्शन से करने के बाद जो अब टेप जाएगा लिस्ट में वो सीधा ही जाएगा, वो बस जो लिस्ट की करेक्शन होगी वही फर्क पड़ेगा, टेप करेक्शन खत्म हो जाएगी। करेक्ट। So in questions may just make a sketch and just write the formula down below. Corrected allege is equal to observed allege upon cos theta plus minus L by 2 minus A into tan theta plus minus B into tan of list.
एंड ये तीनों करेक्शन अलग अलग निकाल के उसको लगा दीजिए, दैट्स ऑल। ये आपको समझने के लिए कि यार ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, वो आपने समझ लिया बाय दिस ट्रायंगल यूओपी, बाय ट्रायंगल टीपीई, या जो भी आपकी ट्रायंगल्स हैं। नाउ यू अंडरस्टूड कि यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब मैं एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैं स्केच बनाता हूँ, नीचे सीधा ये डेरिवेशन ऑफ फार्मूला लिख देता हूँ कि करेक्टेड एल इज इक्वल सो एंड सो, तीनों की वैल्यू निकालता हूँ, प्लस माइनस करके करेक्टेड एल निकाल लेता हूँ, दैट्स ऑल।
हाँ सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर अगर हम पहले लिस्ट लगा के फिर ट्रिम लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा या फिर? हाँ नॉर्मली आना नहीं चाहिए, बट यूजुअल मेथड है कि पहले हम ट्रिम से करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ठीक। ये जो सेम ही रहेगी। सो देन वी अप्लाई फॉर द लिस्ट। सो बेसिकली हम तीनों अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, फ़र्क तो आने वाला नहीं। देखिए अब हमने क्या किया, कैलकुलेटिंग यूपी, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व्ड अलेज अपॉन कॉस थीटा किया, उसकी वैल्यू निकाल ली। तो आपको ये पूरा ऊपर शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट वे स्केच बनाइए एंड देन यू कैन राइट द टेप करेक्शन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अलेज अपॉन कॉस थीटा। सिर्फ यही वाली लाइन 1.8 डिवाइड बाई 0.999 इज इक्वल टू 1.8, वही रहा। सेकेंड, ट्रिम करेक्शन इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू एल बाई 2 माइनस ए, इसकी वैल्यू भर दीजिए, आपके पास आ गई 0.167, 2 करेक्शन आ गई। तीसरी करेक्शन आपके पास लिस्ट की भी मैंने निकाली 2 इंटू 1 पॉइंट, सो क्या 3 करेक्शंस आ गई। सो फाइनली यू कैन राइट करेक्टेड अलेज इज इक्वल टू अलेज करेक्टेड फॉर टेप करेक्शन प्लस ट्रिम करेक्शन माइनस लिस्ट करेक्शन। ये प्लस माइनस आपने देख लिया कि लिस्ट किस तरफ है और ट्रिम किस तरफ है। 1.8 प्लस दिस माइनस दिस, ये आपकी करेक्टेड अलेज आ गई। तो आप किसी को भी पहले बात की जरूरत ही नहीं है, तीनों करेक्शन मैंने निकाल ली सेपरेटली एंड तीनों को मैंने अप्लाई कर दिया प्लस माइनस साइन देख के। दैट्स ऑल। तो इसका आंसर क्या है? 8383.3। यस सर। आगे सर अब आप वो बता दीजिए प्लीज, थीटा इक्वल टू ट्रिम बाय एलबीपी कैसे? टेक यू ऑन द बोर्ड। बस तो आपका टाइम हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया? अब अगर आप देखते हो आपका शिप, कैन यू सी द बोर्ड? नाउ सपोज माय शिप इज इन दिस कंडीशन, ये मेरा आफ्टर परपेंडिकुलर, फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द से वाटर लाइन। शिप को ट्रिम कर दिया तो हमारी दिस इज द बेसिकली वाटर लाइन। ये आपका फॉरवर्ड ड्राफ्ट और ये आपका हाफ ड्राफ्ट, इजंट इट? यस सर। यस सर। बेसिकली ट्रिम क्या है? डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड हाफ ड्राफ्ट। अब मैं इसी को अपने इस लाइन को ऊपर ले जाता हूँ इस परपेंडिकुलर पे, तो ये मेरी ट्रिम हो गई, डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड हाफ ड्राफ्ट। अब ये एंगल जो बनाना है आपने, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। ये एंगल किसके बराबर होगा? दिस साइड, व्हाट इज दिस साइड? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड ड्राफ्ट एंड हाफ ड्राफ्ट, which is equal to trim and between the perpendiculars, ये वाली साइड क्या हो गई? LBP। अब ये एंगल कितनी जगह बनेगा? वहां पे सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ पे बना लीजिए दिस एंगल, और आप सेंटर ऑफ फ्लोटेशन पे बना लीजिए, तब भी वही रहेगा। सपोज दिस इज योर मिडशिप एंड माय सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इज हियर। आपके मन में आ रहा होगा द शिप एक्चुअली ट्रिम्स अराउंड सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। अब इस एंगल को भी अगर आप देखते हो, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, दिस इज ऑल दिस एंगल्स विल बी सेम। तो बेसिकली tan थीटा ट्रिम अपॉन LBP इज इक्वल टू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
समझ गए? सर ये विद रेस्पेक्ट टू ये जैसे आप ऊपर ले जाओगे ना, जैसे साउंडिंग पाइप तो परपेंडिकुलर टू दिस एलबीपी है, उसके रेस्पेक्ट में कैसे चला गया, क्योंकि वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरे अभी आप देखिए ना, आपका बेसिकली हमारे पास ये है, दिस इज माई, अगर मैं इसी को मैंने प्रोजेक्ट किया कि ये मेरा हाफ ड्राफ्ट था, ये मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट था। अब मैं इस लाइन को यहाँ पे ले जाता हूँ तो मेरी डिफरेंस तो यही हो गया ना, फॉरवर्ड ड्राफ्ट और ये मेरा हाफ ड्राफ्ट। तो ये जो लाइन बनी, दिस इज द डिफरेंस इन द फॉरवर्ड एंड हाफ ड्राफ्ट। चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप यहाँ से लाइन को मिलाइए, ये जो फॉरवर्ड ड्राफ्ट है ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। यस और नो? दिस बेसिकली डिफरेंस इन ड्राफ्ट। फॉरवर्ड में भी इतना पानी है एंड इसको मैं यहाँ पे ले आया एंड ये मेरा हाफ ड्राफ्ट। सर ये जो आप ये समझा रहे, समझ गया। आप ये जो अपर डेक है इस पे एक ऊपर सीधे लाइन लीजिए, सीधे लाइन खींचिए अपर डेक पे जो अपर डेक है इस पे एक सीधा साउंडिंग पाइप ऊपर बनाइए। ओके, साउंडिंग पाइप कहाँ पे बनाऊं? यहाँ पे? हाँ कहीं भी बना लो सर, एक साउंडिंग पाइप। अब ये साउंडिंग पाइप इज परपेंडिकुलर टू द अपर डेक, तो इसका जो डिफ्लेक्शन अपन कर रहे हैं ये थीटा कैसे आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। ओके, आप कहीं इससे तो नहीं कंफ्यूज हो रहे? मेरे को लग रहा है कि बेसिकली अगर ये मेरा टैंक है, आई होप आपके मन में ये तो नहीं क्वेश्चन कि सर अलेज पाइप तो ये है और मैं इसको डिफ्लेक्शन को दिखा रहा हूँ यहाँ से, आप कह रहे हो कि ये सीधी जाएगी फिर ये ऐसे जाएगी, ये तो नहीं आपके मन में? नहीं, नो सर, जो साउंडिंग पाइप के जो टिप है उस पे जो थीटा बन रहा है वो ट्रिम के बराबर कैसे आ रहा है, बस मेरे को ये पूछना है। जो ये जो आ रहा है ना, ये बीच वाला जो एंगल, ये आपका, हाँ ये थीटा क्यों आ रहा है? बच्चे वेरी सिंपल, यस ओके। जितना आपका जहाज ट्रिम करेगा, जितना आपका ये एंगल बनेगा, ये सपोज सीधा जहाज जितना ये ट्रिम करेगा उतनी ही ये टेप डिफ्लेक्ट होने वाली है। अच्छा, ये उससे भी ले सकते हैं ना, थीटा और 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर वो 180 से माइनस करके थीटा। उससे भी सिंपल, ये मेरा शेप है सीधा है, अगर मैं इसको ट्रिम देता हूँ, ये मेरी टेप है, मैंने यहाँ पे टेप डाली हुई है, जब ये सीधा था तो टेप वाज एब्सोल्युटली 90 डिग्री, तो ये टेप भी उतनी डिफ्लेक्ट होगी जितना ये जहाज ट्रिम करता जाएगा, ग्रेविटी। ठीक है सर। ओके, चलो गुड, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, आई डोंट वांट टू टेक उनका टाइम, सो ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट, टुमारो तो नहीं है, डे आफ्टर टुमारो। चलो विल कंटिन्यू विद दिस, आई होप सो फार व्हाट वी हैव डन इज अंडरस्टूड। डाउट होंगे तो नेक्स्ट क्लास में। सर इसकी एक वो आंसर वाली स्लाइड दिखा दोगे सर एक बार? ओके, ले लीजिए। करेक्टेड एलेज आपके पास आ गई 1.932, 20 meter height of the tank, 1 meter allege port above the deck minus corrected allege will give you the height of oil in the tank, volume, VCF, WCF, quantity। ठीक है सर, अभी सिली मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो माइनस कर दिया, पता नहीं किस खुशी में मैंने। चलो ठीक है, ओके डियर, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय सर। वेलकम बच्चे, वेलकम। थैंक यू सर। या वेलकम बच्चे।